घर छोड़ के नानी के पास चली गई थी रांची रहने के लिए. Then I'm not much involved in my family matters. So the whole criteria of human life or existence is to be seen. हम चाहते हैं कि कोई हमें देखे, कोई हमें सुने. Is it that her throat chakra is imbalanced? Throat chakra blocked है, इसका root chakra blocked है, heart chakra blocked है. Nawab Pataudi, he was a great cricketer and everybody knows he lost an eye in an accident and one of his eyes was glass. पूछा कि अब एक आँख से कैसे खेलते हैं? I saw that there are 2 balls coming. मैं नीचे वाली को मारता था और मैं नहीं मार पा रहा था. फिर मैंने ऊपर वाली बॉल को हिट करना शुरू किया. आपकी लिसनिंग इतनी ऑल्टर हो जाएगी, आपको कोई बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, देखिए वो पॉजिटिव बोल रहा है, वो नेगेटिव बोल रहा है, वो मैटर नहीं करेगा. आप उसमें से अपने सिर्फ ऑड्स एंड इवन्स देखो. कपिल शर्मा शो सब देखते हैं. अगर आप लास्ट वाला देखें तो उसमें सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति आए थे. When you come next time, would you be the president of India? Her answer was, hello and welcome to the next episode of our podcast. Have you ever felt your voice being suppressed? You're not able to say what you want to say. Your emotions being suppressed. Your throat chakra not helping you because it's not balanced. So if you have felt so, I think you are at the right place. You should watch our entire video and podcast. We have with us again Richa, who has blessed her presence again, and we will go through a case and she would help us unlock the questions that we have and help each one of us who faces this challenge how to get better over a period of time with her help and the suggestions she would have. So welcome again Richa to the show. Thank you so much for accepting. So this case that we are presenting today, you have gone through it, you have spoken to her. So is it that her throat chakra is imbalanced? Is it just an subconscious thing कि जो उनके साथ अभी तक हुआ? There are multiple things which we'll gradually get to. तो there are certain situations in life जो हमारे सबके साथ होती हैं. वो impact कर गई और इन्होंने बोलना बंद कर दिया, right? Or that impacted imbalance of her chakra. So please summarize and tell us what happened. So गगन, इधर जो केस है, अगर हम वॉइस से शुरू करते हैं, बिकॉज यू आस्क अबाउट द वॉइस. सो व्हेनेवर जब भी हम वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला है कि जब किसी को वॉइस बचपन में सप्रेस की जाती है, मतलब उसको बोलने नहीं दिया जाता या वो बोलने की कोशिश करता है तो वो खुद से ही सप्रेस कर लेता है. मतलब दिस इज़ वन कैटेगरी ऑफ पीपल. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज़ लाइक दे स्टार्ट शाउटिंग टू बी हर्ड. So if you see people who are shouting, they're wanting to be heard. So both cases they are wanting to be heard. जो चुप हो जाते तब भी आपका अटेंशन जाएगा. आप देखिए कोई इंसान बहुत चुप है तो आपको लगेगा क्यों नहीं बोल रहा है. Why is the person so silent? So they also want to be heard and seen. So the whole criteria of human life or existence is to be seen. तो हम जीवन में जो भी करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें देखे, कोई हमें सुने. हमारे भी आइडियाज़ हैं, हमारा भी मेंटल स्पेस है. But most of us are not because of the childhood things in life. और अगर हम लाइफ को देखें, so we all when we are birth we are like a blank paper. The way we go through situations in our life and feel and decide it is good for me, I should speak, या मुझे चुप रह जाना चाहिए, यहाँ पीछे हो जाना चाहिए. तो वो जैसे जैसे डिफ़ाइन होता है वो अपनी लाइफ में, वो जैसे जैसे बच्चा देखता है वो अपनी लाइफ की एक स्टोरी लिखता है अपने बारे में कि इस इंसान के साथ बात करोगे तो आपको ये नहीं बोलना है, इस इंसान के साथ ये करें तो ये नहीं करना. तो आप एक प्रीसेट अपने माइंड में डिफाइन कर लेते हो, एक स्टोरी लाइन. आपका माइंड उसी स्टोरी लाइन पे लाइफ भर चलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न. करेक्ट. तो जी, सो हमने इन पैटर्न्स के बारे में काफ़ी बात की है, तो इसको इनिशियली अभी अनब्लॉक करने की कोशिश करते हैं बिकॉज आजकल काफ़ी डिबेट डिस्कशंस आर हैपनिंग कि मेंटल हेल्थ के बारे में, राइट? और पहले होता था कि आफ्टर दिस पैटर्न्स आर बिल्ट, people like the subject who are matured, who are maybe 20 plus and adults, they come. But root cause हमने आज तक जितने भी episodes किए आपके साथ उसमें कहीं ना कहीं यही निकल के आता है, the emotions got suppressed or whatever imbalance got created in life, that was because their childhood. So I think everything is stemming from there. How you saw your father treating your mother, probably that is how it has come into your unsuccessful marriage. आपको पेरेंट्स ने भी पैसे के लिए मना कर दिया तो आपको पैसे का डेफिसिट फील हो रहा है, वो आप मैं कभी कमा नहीं, समथिंग और द अदर हिट देयर. सो व्हाट इज़ योर विथ योर एक्सपीरियंस, सो मेनी सब्जेक्ट्स दैट यू हैव सीन, एडवाइस राइट टू नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट टू इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, व्हाट शुड दे डू ताकि ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे समझ आने लग जाएं? शुड देयर बी
regular counseling sessions, regular. I think many schools have already started a lot of counseling sessions, but I still don't see that opening. क्योंकि देखिए आप बचपन में एक बच्चा जब कोई भी चीज़ देखता है वो एक पर्सनालिटी भी बिल्ड कर लेता है ना. Correct. तो हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है. आप भले ही काउंसलर उसको कुछ भी बोलेगा वो नहीं सुनता है बच्चा, क्योंकि वो कह रहा है आप मुझे बोल रहे हो, है ना, लाइक यू आर एडवाइजिंग मी फॉर समथिंग. बट लेट्स से इवन इफ यू आर एडवाइजिंग मी, लाइफ तो मेरी है ना, मुझे जाके फेस करना है. यू आर नॉट गोइंग टू फेस, यू आर एडवाइजिंग मी. हु इज गोइंग टू फेस? एंड आई एम नॉट रेडी टू फेस दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, और हैव दैट कन्वर्सेशन. मैं उस कन्वर्सेशन को भी नहीं फेस करना चाहती. तो आप उसको बोलने के बाद भी वो बच्चा नहीं करेगा. सो काउंसलिंग ऑल्सो हेल्प्स टू अ सर्टन पॉइंट. आफ्टर दैट नो. क्योंकि जब तक, अब जैसे आपने वर्ड यूज़ किया मेंटल हेल्थ, पर वो इमोशंस पे बेस्ड है ना मेंटल हेल्थ. देखिए हम इतना मोटिवेशन सुनते हैं, क्यों हर आदमी उठ के मोटिवेट नहीं हो जाता, या वो मोटिवेट होने के बाद भी क्यों एक्शन नहीं लेता? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेन और प्लेजर. जिस चीज़ में आपको पेन है वो कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, है ना. जिस चीज़ में आपको प्लेजर है, मतलब आपको लग रहा है अगर बात ना करना प्लेजरेबल है तो आप बात ना करना चूज़ करेंगे. सो इट इज़ नॉट ऑन दैट थिंग कि भाई आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. आप किसी भी पैरामीटर को इमोशनली मेजर करके देख लीजिए, माइंड उसी पे एक्शन लेगा. अगर माइंड को हार्ट कह रहा है, इमोशंस कह रहे हैं कि भाई दिस इज़ वेरी पेनफुल, आई कैन नॉट टॉलरेट बिकॉज आई विल हैव टू क्राई, आई विल हैव टू फील गिल्टी, आई विल हैव टू फील सैड, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है. मेरे लिए बात ना करना इज़ ईजी. तो वो बच्ची भी आप देखिए, अगर सेशन हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज क्राइंग. वाई? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक. वो जो अभी मैंने बोला ना कि हम बोल भी देंगे तो वो नहीं समझना चाहेगा. Because that feeling or that emotion has gotten so strong कि that's the belief system maybe, right? ऑल्सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, ये हर एक के अनकॉन्शियस माइंड में भी है, कि यू आर नॉट स्टैंडिंग इन माई शूज़, यू आर नॉट स्टैंडिंग इन माई लाइफ. आपको नहीं पता मेरे लाइफ में लोग कैसे हैं, आपको नहीं पता मेरी परिस्थिति कैसी है. इसीलिए हम कितनी बातें सुनने के बाद भी उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. मतलब मान लेते हैं हम एडवाइस लेने गए, एडवाइस ली, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ इंटरनली नहीं आ पाती है. क्यों? क्योंकि अगेन वो मेंटल स्पेस है कि पता नहीं उनको कितना समझा होगा, इट्स माई लाइफ, लाइक दे डोंट नो. मतलब मान लो सपोज किसी का बच्चे का मदर के साथ इशू है, किसी का फादर के साथ इशू है, किसी का सिबलिंग के साथ इशू है. उनको थोड़ी पता है मेरा भाई कैसा है, उनको थोड़ी पता है मेरा फादर कैसा है, उनको थोड़ी पता है कि मेरी मदर कैसी है, उनको थोड़ी पता है, उनको थोड़ी. तो वो जो कैटेगराइज है ना कि भाई इट इज़ माई पेन, I have to deal with it, I know better, I know, and it is, they are actually talking about अपने इमोशंस. कि वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है जो हम खुद से नहीं करते. मैंने बहुत लोगों इतने सेशंस लेती हूँ, उसमें हमेशा देखा है जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, उस सेल्फ टॉक में हम हमेशा अपने आप को पेन और गिल्ट में ही देख रहे होते हैं. करेक्ट है ना. वी डू नॉट सी अवर सेल्फ इन अ गुड लाइट. तभी हम बाहर किसी के साथ भी जो भी हम बाहर बात कर रहे हैं वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि दैट इज़ द वे यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ. तो बहुत लोग सेल्फ लव, सेल्फ ये करें और ये सब करें. तो वो सेल्फ लव आप कुछ देर के लिए, देखिए आप प्रोडक्ट्स खरीद ला सकते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आपको ऐसे लगता है यार अब कुछ मज़ा नहीं है. जैसे हमारे एपिसोड में एक बच्ची ने लाइक 4 दिन के लिए उसको अच्छा लगता था, इट वॉज प्लेजर, फिर 4 दिन के बाद वो ऐसे लगता था बहुत डिप आ गया अब लाइफ में. तो वो कई लोगों को वो भी फील होता है दैट दे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बाइंग समथिंग, और मे बी गोइंग टू अ पार्लर, और मे बी डूइंग शॉपिंग, या मे बी सिटिंग इन अ कॉफ़ी शॉप. मतलब उन्होंने यही सेल्फ लव का डिफाइन कर दिया. बट सेल्फ लव इज़ एक्चुअली हैविंग अ सेल्फ कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. ऑनेस्टली अगर आपको बुरा लग रहा है, हम कभी भी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं इन द इमोशनल स्पेसेस, नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ अबाउट योर रियल इमोशन. हम बात करते हैं नहीं, मैंने उसको आंसर दे दिया, है ना, मैंने उसकी बात सुन ली, सामने वाले ने मुझे गलत बोला. दिस इज़ व्हाट गोज ऑन इन अवर इमोशनल सेल्फ टॉक. बट एक्चुअली तो ये कन्वर्सेशन आपको कहीं हेल्प नहीं कर रही है. ये तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है. प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है मतलब आप अगला डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? इस सेल्फ टॉक के बेसिस पे. Correct. लेकिन यहाँ पे आपको बात करनी क्या चाहिए थी अपने आप से कि भाई मुझे एक्चुअली ये बात इसकी बुरी लगी, ये पर्टिकुलर बात, क्योंकि इस बात में मुझे फील हुआ कि मैं कहीं स्टूपिड लग रही थी, मैं कहीं अनवांटेड थी, मैं कहीं रिजेक्टेड थी. बट वो रिजेक्शन की फीलिंग कहीं ना कहीं आपकी अपनी सेल्फ डिफाइंड है.
तभी आपको उसका वर्ड ट्रिगर हुआ. द पर्सन जस्ट ट्रिगर्ड एन इमोशन. फीलिंग बहुत डीप है. फीलिंग में आपको अनइंटेलिजेंट फील हो सकता है, रिजेक्टेड फील हो सकता है, स्टूपिड फील हो सकता है, आपको अनवांटेड फील हो सकता है. ये आपका पर्सनल है, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी. Correct. So okay. So let me take an example here. Suppose there are 3 siblings, right? One of them is her, right? So the 2 other are very jovial. They don't have any such problem of suppression of voice, right, and whatnot. So अब तीनों अलग अलग रहते हैं. Maybe all 3 are married, and they meet over in a family get together, right? Now the 2 others who are jovial, relationship इनका भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है. So the other 2 are enjoying and chit chatting and talking about what happened in the past 2-3 months, कितना मजा आया, क्या क्या किया मैंने. And she, because she believes, जो आपने कहा कि she thinks I am not heard, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो she will not participate in the discussion. She'll just be observing them. Yeah. And then when she does her self talk, she will say, यार मेरे से तो इन्होंने बात ही नहीं करी. जबकि वो एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कि वो उनसे बात करें. इट जस्ट स्टक. यू आर ऑल्सो अ सिस्टर, यू कुड हैव सिबलिंग, यू कुड हैव ऑल्सो गॉटन इन्वॉल्व्ड. Exactly. तो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ, तो क्वेश्चन इज वी नो द प्रॉब्लम नाउ, सो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप. जैसे आपने बोला मैं तो समझा सकती हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट अगेन दैट सेल्फ टॉक इज, मुझे पता है यार 1 घंटे में इनको क्या पता कि मेरा भाई कैसा है, या मेरी बहन कैसी है, मदर कैसे है, फादर कैसा है, या कजन्स कैसे हैं, राइट? हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे रिजेक्ट मी. अब हो सकता है वो रिजेक्ट नहीं करें, आप ही की वो सेल्फ टॉक है, जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया. सेल्फ टॉक है एक्चुअली, जो आपकी सेल्फ टॉक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको कभी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन मैं अपने जब जितने भी प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेशंस, उसमें हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप ना कुछ करो या ना करो, 10 मिनट ज़रूर अपने साथ निकालो, पूरे दिन को फिल्टर करो. आपने जब भी इमोशंस को अनएड्रेस छोड़ दिया, धीरे धीरे वो आपके मेंटल स्पेस में डिपॉजिट होगा, क्योंकि आप सेल्फ करोगे अनएड्रेस्ड इमोशंस को, तो कहीं तो स्टोर होगा ना. माइंड के पास अनप्रोसेस्ड डेटा है, एज सिंपल एज दैट. तो जो अनप्रोसेस्ड डेटा है वो क्या करेगा, आपके डिसीजंस और चॉइसेस पे ही तो इफेक्ट करेगा फ्यूचर में. हम बोलते हैं डेस्टिनी, ये डेस्टिनी तो यहाँ बिल्ड हो रही है ना. क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ मेरे को खाली ये चॉइस करनी थी, इससे ऑल्टर हो जाता? नहीं करते हम. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज, एंड आपने भी सुना होगा, आपके तो फील्ड का ही है, एंड आई ऑल्सो लिसन टू ऑल दिस, दिस लॉट टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव सेल्फ टॉक. सो इज दिस द सेम? और इसको एक तो है जो आपने बोला कि रोज शाम को बैठो 10 मिनट, अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इमोशंस यू वेंट थ्रू, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एंड वेयर इज इट दैट मे इम्पैक्ट यू. जैसे आपका डेटा स्टोर है, इनके केस में 12-13 साल की उम्र से चला आ रहा है, मे बी इट्स बीन 15 ईयर्स जर्नी. नाउ हाउ एंड व्हाट सच पीपल नीड टू, कि कोई बचपन का है इमोशन जो लॉक्ड है, उसकी वजह से आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो गया, वॉइस सप्रेशन हो गया. खाली थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं है ना, रूट भी इफेक्ट करेगा. क्योंकि फियर है, सेल्फ डाउट है, तो एक चक्रा इम्पैक्ट नहीं होगा, कई चक्रास इम्पैक्ट, मल्टीपल इम्पैक्ट होगा. मतलब अब जैसे अभी आपने बोला कि पॉजिटिव टॉक, तो अब जैसे ये नेगेटिव टॉक कर रही है, तो कई जगह तो इसको फ़ायदा होता है चुप रहने में. जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जो बच्चे चुप रहते हैं, दे ऑलवेज आर द साइलेंट वंस, उनको हमेशा दे आर सीन इन अ गुड बुक, लेकिन जो बोलते हैं उनको दे आर सीन इन अ बैड बुक. सो समटाइम्स इट इज़ टू हर एडवांटेज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा चुप रहने से नुकसान होता है, बट फ़ायदा और नुकसान को अगर कंपेयर करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है. अब इसके केस में इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसका क्या बोलते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. बिकॉज अगर आप देखें तो शी वॉज ओनली क्राइंग इन द एंटायर सेशन. She was crying, she was quiet. I think out of the session that I observed, 45 minutes और 1 hour का जो आपका सेशन था इनके साथ, उसमें 50-52 मिनट तो उनकी आंखें नीचे ही थी. इवन आफ्टर यू फोर्सिंग, नॉट फोर्सिंग एज इन फोर्सिंग, बट रिक्वेस्टिंग मे बी टू ऊपर देख के जवाब दो, बोलो ये जो आप पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हो. आप देखो But she was ना, not. जब हमारी आईज नीचे होती है, व्हाट इमोशन आर वी होल्डिंग? गिल्ट है, शेमफुलनेस है, समथिंग इन हर पास्ट इज शी फील्स दैट, बिकॉज उसके फादर को कोई बीमारी के बारे में उसको पता चला, एंड व्हेन शी वाज टोल्ड मे बी शी डिड नॉट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, बिकॉज शी थॉट कि बीमारी तो देखो आज खांसी जुकाम भी बीमारी है, वॉट एवर डिजीज इज फादर हैड, उस चीज़ को उसका माइंड प्रोजेक्ट नहीं कर पाया हाउ बिग द डिसीज इज. इन माई 9th स्टैंडर्ड मैं घर छोड़ के नानी के पास चली गई थी रांची रहने के लिए. देन आई एम नॉट मच इन्वॉल्व्ड इन माई फैमिली मैटर्स फ्रॉम दैट टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई थी. एंड एट दैट टाइम पापा का हेल्थ इशू भी स्टार्ट हुआ था, विच आई डिडंट नो अबाउट इट.
कि वो उतना सीरियस है या क्या है, तो वो वैसे ही चल रहा था फिर। तो तुमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुमने पापा की हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो गई और तुम वहाँ थी नहीं, तो तुम्हें इतनी समझ ही नहीं है कि तुम चीज़ों को देख सकती हो, ऐसी फीलिंग है? इस बात का गिल्ट है अभी तक कि सबने तुम्हें बताया कि भाई पापा बीमार हैं, पर तुमने सोचा कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल बीमारी होगी। हाँ मतलब नहीं पता था कि पापा का तबीयत इतना ख़राब है या फिर क्या है, एंड ऑल द थिंग्स माय सिस्टर हैज़ टू हैंडल ऑल अलोन। सो तो वो उसी शेम और गिल्ट में आज तक जी रही है। मतलब देखिए, अब 14 साल का बच्चा, उसको नहीं पता बहुत डिजीज़ के बारे में। चलिए आज हम शी इज़ 28-29, अगर हम 14 साल पुरानी बात करें तो जितनी इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल है उतनी तो तब नहीं थी, एंड द चिल्ड्रन वर आल्सो नॉट एज स्मार्ट जो आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी बट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। क्लिक ऑफ अ बटन यू गेट इट। You're punishing yourself for not being there or understanding things for your father. Yes. How old were you? You were, I think, 14 years old. या अराउंड तो 14 साल के बच्चे को क्या पता the seriousness of the illness? Does a 14-year-old know? अगर कोई 14 साल का बच्चा होगा, उसको तुम बताओगे जो तुम्हारे फादर को हुआ था, वो कितना समझेगा? समझ पाएगा वो? तुम किसी 14 साल के बच्चे को वो डिजीज़ बताओ जो तुम्हारे फादर को थी, क्या वो 14 साल का बच्चा समझ पाएगा? हो सकता है गूगल करके पढ़ ले उस डिजीज़ के बारे में, पर क्या वो उसकी सिवियरिटी को समझ पाएगा? तुम भी तो सेम एज में थी, यस और नो? तो फिर अपने आप को इतना ब्लेम क्यों कर रही हो कि तुम समझ नहीं पाई? तुम्हें क्या लगता है आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि तब के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? आज के तो अगर आजकल के बच्चे उतना नहीं समझ सकते, तुम कैसे समझ सकती थी? फिर जो आजकल के बच्चे हैं, द काइंड ऑफ दे नो हाउ टू सर्च, हाउ टू डू द रिसर्च, वो 15 साल पहले नहीं था उन बच्चों में। करेक्ट। हम भी आज जितना देखते हैं या जानते हैं, उसको और तब में देयर वाज अ डिफरेंस ना, दैट इरा, दैट टाइम पीरियड वाज डिफरेंट। तो वो ये पार्ट उसका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाया। तो एक पार्ट है कि भाई मेरे फादर को ये हुआ, बीमारी हुई, एंड बिकॉज उसके फादर ही पास्ड अवे आल्सो, देन दैट गिल्ट बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर। तो सेल्फ टॉक में सिर्फ आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कोई इंसान मेरे सामने भी कोई चीज़ बोलता है तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ या सुनती नहीं हूँ। सो दैट इज़ हर होल स्टोरी लाइन विच इज़ बेस्ड ऑन हर होल डिसीजंस एंड चॉइसेस। तो इसीलिए शी इज़ क्राइंग। अगर हम ये क्वेश्चन पूछे ना कि अगर आपको एक पास्ट में कोई चीज़ चेंज करनी पड़े तो आपको क्या, व्हाट कैन वी डू? सो शी वुड लव टू चेंज दैट पास्ट। राइट। सो इज़ इट ऑल्सो कि आप जब सेल्फ टॉक करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस पे एनालाइज करते हैं और उनको जो भी सोल्यूशन आपने माइंड में बनाया पॉजिटिव बनाइए, एंड डज दैट हेल्प? डू दो सक्सेसफुल पीपल आई हैव हर्ड, रेड लॉट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज, वो लोग ये बहुत करते हैं कि सेल्फ टॉक करा, एनालाइज किया, जर्नलिंग करी, एंड देन they become very positive, right? So I'll give you a very good example. I think everybody in India probably, and now तो I know 150 countries कपिल शर्मा शो सब देखते हैं। अगर आप लास्ट वाला देखें तो उसमें सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति आए थे। So again, she talks about positive self-talk. She writes a lot of books for kids, how they should, and I really love what she does. So उनसे कपिल शर्मा बोला कि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आप एक गृहिणी थे, आप एक एंटरप्रेन्योर थे, आप एक जो काफ़ी दान पुण्य का काम करते वो थे। इस बार जब आए आप राज्यसभा मेंबर हैं। सो व्हाट व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम वुड यू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रही? हर आंसर वाज कि अभी तो मैं ये काम कर रही हूँ, अगर ये पाथ वहाँ लीड करता है तो देखेंगे। सो शी सेड ना, डिड नॉट से नो। उसने ना नहीं बोला, ना उसने हाँ बोला कि क्या एम आई वर्किंग टुवर्ड, बोले मैं अभी ये कर रही हूँ, जैसे मैंने पिछली बार से यहाँ तक एक स्टेप में आई, अब ये काम कर रही हूँ। डज दैट स्टेप और पाथ लीडर? आई डोंट नो। सो अगली बार आएंगे तब देखेंगे, राइट? वेरी पॉजिटिव। पर वो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव टॉक, दिस इज कॉल्ड अ पावर टॉक। पावर टॉक। तो पॉजिटिव टॉक में क्या होता है, बिकॉज द यूनिवर्स वर्क्स ऑन पोलैरिटीज, तो जब आप पॉजिटिव बात करेंगे तो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं आपको, अरे नहीं कर पाया, तो द मोमेंट यू से, लेट्स से कि आपके पास्ट में वो चीज़ नहीं थी, तो आप पॉजिटिव बात करेंगे और आपसे नहीं हो पाया तो आप नेगेटिव भी बोल देंगे। तो
मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज सी व्हाट इज देयर एंड हाउ मच कैन यू वर्क. पावर टॉक इज जब आप अपनी ऑप्शंस में बेस्ट यूजेज करते हैं. मेरे पास अभी ये है, डिड आई डू द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, या मैं और बेटर कर सकती थी. करेक्ट है ना. तो जो एथलीट्स बात करते हैं, दे ऑलवेज टॉक इन पावर टॉक, दे डोंट टॉक इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि उनको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो पार्ट है. अब सिचुएशन है आपके पास, मान लेते हैं आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल रह गई है, 6 रन है. अब वहाँ पॉजिटिव टॉक काम नहीं करेगी, पावर टॉक करेगी. व्हाट आर माय ऑप्शंस, मैं फील्ड पे देखूँ चारों तरफ क्या ऑप्शंस है, कहाँ मैं मार सकता हूँ, कहाँ मैं नहीं मार सकता. दैट इज पावर कन्वर्सेशन. सेल्फ टॉक में क्या टॉक कर रहे हैं वो भी मैटर करता है. अभी आजकल ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इट डजेंट वर्क दैट. It only works when you see your options, because mind का जो मेन फंक्शन है, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेंटल माइंड का काम है कि अबंडेंस की बातें करना. माइंड कभी अबंडेंस नहीं जानता. माइंड का काम है सर्वाइव कराना. वो अगर आपको इमोशनली वीक कर रहे, आप फील कर रहे हो ना, तो वो बोलेगा भाई अभी मुझे पहले इसको बचाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये सॉर्ट आउट हो या ना हो. मान लेते हैं आप बैट हाथ में लेके वहाँ इमोशनली वीक हो रहे हैं, तो आपका माइंड, आप कितनी पॉजिटिव टॉक कर लीजिए, नहीं आपको मारने देगा वो सिक्सर. उसके लिए आपको अपने ऑड्स एंड इवन्स देखने हैं. इस समय मैं अगर पिच पे खड़ा हूँ तो यहाँ ऑड्स क्या है, यहाँ इवन्स क्या है, एंड दैट्स द पावर टॉक. अगर मैं ये बोलूँ मैं करूँ, नहीं हुआ तो टीम हार जाएगी, नहीं हुआ एवरीबडी इज रिलाइंग ऑन मी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव टॉक एंड पावर टॉक. इट्स वेरी इंटरेस्ट. मैं आपसे और 2 एग्जांपल लिख, बिकॉज आजकल ना बहुत सारा ये, जैसे पहले आपने बोला कि पहले इतना रेडीली हमारे जनरेशन में, या 15-20 साल पहले, इंटरनेट से पहले 24-25 साल पहले, इतना इन्फॉर्मेशन रेडीली एंड क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल नहीं था. आज इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, सब वही रिसर्च हुआ है सब कुछ, राइट. आज हम AI की बात करते हैं, AI हैज़ बीन देयर फ्रॉम 1960s, राइट. लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी रिसर्च हो गया है, एवेन्यूज अवेलेबल हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर अवेलेबल, लॉट ऑफ स्टफ. सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू टच अपॉन, पावर टॉक वर्सेज positive talk, right? So another example, again I'll take from the same show, Kapil Sharma show, Sudha Murthy. उनसे पूछा गया आपकी मतलब ये हेल्थ का राज क्या है. कह रही मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती, और आपको मूर्ति साहब की बॉडी से नज़र आ ही रहा होगा. सो दिस इज़ फॉर ऑल द लेडीज सिटिंग हियर कि अच्छा खाना मत बनाइए, तभी आपके हस्बैंड फिट रहेंगे, राइट. सो इज दिस पॉजिटिव टॉक और दिस इज पावर टॉक? बिकॉज इट हैज़ इम्पैक्टेड मी, इट वुड हैव इम्पैक्टेड मेनी अ पीपल. बिकॉज आई वॉज एनालाइजिंग, सी हाउ the questions may be the same for everybody. Yeah. The way she has responded, she has made the impact. I still have goosebumps when I'm discussing that. So, so is it positive talk or is it power talk? See, it's a power talk. She's a powerful woman. मतलब उनकी जो सोचने का तरीका है, the whole game lies in the way you think. आप कैसे सोचते हैं. हम कहते हैं ना, thoughts create your reality. The way you are thinking, मैं गिल्ट में हूँ, तो आप रोज़ गिल्ट चला रहे हो, तो आप कहाँ देख पाओगे आपको लाइफ ने क्या ऑप्शंस दिए हैं, है ना. तो वो एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ से उन्होंने ये जर्नी की राज्यसभा तक की. तो आपको क्या लगता है कि उनको कोई रोज़ मोटिवेट कर सकता है? नहीं. वो खुद के ऑप्शंस ढूंढता है माइंड, है ना. खुद व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ टुडे अवेलेबल. क्योंकि हम फ्यूचर की बात करते हैं, पर फ्यूचर का कॉन्स्ट्रक्ट यही तो हो रहा है. सो जनरली पीपल गेट, आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया, वो मेरे दिमाग में आ रहा था. फॉर व्यूअर्स आई विल डिकोड विद योर हेल्प. सो इन्हीं के बेस पे रहते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और हम यही बात कर रहे हैं. एंड लेट्स टेक सुधा मूर्ति's एग्जाम्पल. हर हस्बैंड हु इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, प्रोबेबली पीपल वांट टू बी, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ करोड्स दे हैव देयर पर्सनल वेल्थ. सो ही क्विट हिज जॉब, राइट, because Sudha Murthy was working in Tata Group, and he said with 10,000 rupees that I loaned from her, I took it, and then when we established the business, she quit and she never went back to job. Now ये generally ये भी आपने देखा हाउस वाइफ का कि मैंने यार क्विट कर दी, अगर मैंने क्विट नहीं करी होती तो आज पता नहीं मैं भी शायद इतना सक्सेसफुल होती. एंड दिस अगेन अ कॉमन प्रॉब्लम, बट वी हैवंट सीन इट इन हर, नॉट बिकॉज दे हैव गॉट मनी इसलिए, बट पॉजिटिव. And we have seen depression and these cases are with wealthy people, more so in their cases. So what is the difference between normal housewife who has quit her job because of the family and husband is earning well, पैसे की कोई कमी नहीं है, everything is very well done. So वो कैसे वो इनके दिमाग में या वो नेगेटिव ना आए, ये सेल्फ, जैसे इनके केस में भी आ गया कि मैं फादर जब बीमार थे मैं हेल्प नहीं कर पाई, नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी यंग, यू जस्ट हिट योर टीन्स, नहीं समझ होती. तो वो अब इनके डाउट रह गए. ऐसे ही कई हाउसवाइफ्स के डाउट रहता कि यार मैंने अपनी अच्छा करियर छोड़ दिया हस्बैंड के लिए, वाइल ही सक्सेसफुल,
अगर मैं भी कर रही होती तो मैं भी आज वहाँ होती, राइट? एंड दिस सेल्फ टॉक एंड दिस मेंटल ब्लॉक क्रिएट्स प्रॉबली द चक्रास मिसअलाइनमेंट. इनके लिए आपका क्या? द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट गगन, आई ऑलवेज फील, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, उसके लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं. मतलब आप ऑफिस जाते हैं, आपको 4 लोग अच्छा बोलते हैं, या आप पैसे कमा के लाते हैं, तो वहाँ से डिफाइन होती है आपकी इंडिपेंडेंस. आपकी सोच से आपकी इंडिपेंडेंस डिवाइड. देखिए, पहली चीज़ है फिजिकल रियलिटी वर्सेस इंटरनल रियलिटी. अब इंटरनल रियलिटी में आप जॉब करके भी ब्लॉक फील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्रेशर नहीं होता. लेकिन हमारा मेंटल डेफिनेशन ये कहता है कि जब मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जब मैं घर में हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, है ना. अभी आपने बोला पैसे कमा रहा है हस्बैंड, सब कुछ अच्छा है, पर ये तेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है, हमारा कुछ भी नहीं है. तो पहले तो ये देखिए ना कि चैलेंज कहाँ से, हमारा थिंकिंग क्या है यहाँ पे. सो जब मेरा वर्थ ही नहीं है मेरे मेंटल स्पेस में, मेरा वर्थ सिर्फ पैसा डिफाइन करता है, पोजीशन डिफाइन करती है, तो फिर आप कौन है. इन केस ऑफ सिद्धार्थ मूर्ति जी, शी नेवर डिफाइंड हर सेल्फ विथ मनी. जब उनको लगा कि अब उनको क्विट कर लेना चाहिए, इट वॉज अ चॉइस, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गिव दैट टाइम फॉर हर चिल्ड्रन, हर फैमिली. फिर जब उनको लगा कि अब मैंने ये रोल निभा लिया, अब मैं ये कर सकती हूँ, तो उनको अपनी कैपेबिलिटी पे कभी डाउट नहीं था. जितने भी लोग सल्क करते हैं वो उस पोजीशन से अपनी आप को डिफाइन करते हैं, नॉट फ्रॉम द रोल. अगर रोल आपका चेंज होता जाएगा तो आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी. आप उस रोल में कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो आपकी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी डिफाइन करती है. लेकिन लोग सोचते हैं हमारी पोजीशन इज आवर आइडेंटिटी. इट इज़ नॉट. आपकी चॉइसेस, आप किस तरह से अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, वही चीज़ें हमें डिफाइन करती है ना. अगर यही बच्ची, जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी किया कि अगर ये बच्ची उस समय गिल्ट में ना जाती तो ये पूछती कि भाई मैं रिसर्च करूं, क्या मैं इसी चीज़ के सब्जेक्ट को पढूं, क्या मैं इस एजुकेशन सिस्टम में जाऊं, क्या मेरे फादर जैसी डिजीज़ को, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं. यू नेवर फेल्ट दैट लव, यू नेवर फेल्ट दैट वार्मथ ऑफ इमोशंस. यस और नो? Maybe it's because of me. So you have this beautiful way of taking credit of being the wrong one. In your profession also you do that? If somebody makes a mistake, you take it on yourself? Is that why you're not, this is how you stop yourself from growing? Yes or no? और फिर भूल जाती हो उन चीज़ों को करके कि ठीक है भूल जाओ, मेमोरी में रखो ही मत, पेन होगा. पर ये जो बह रहा है क्या है? ऑल दैट स्टोर्ड पेन, ऑल दोस स्टोर्ड इमोशंस. यस और नो? बहुत बच्चे होते हैं. एक मेरे पास एक लास्ट ईयर एक लेडी आई थी, वो डॉक्टर बनी इसलिए क्योंकि उनके फादर को कैंसर हो गया था. व्हेन शी वाज अ किड शी सेड आई वांट टू लर्न, आई वांटेड टू हेल्प पीपल, जिनको, क्योंकि मैंने देखा है अपने फादर को पेन में. तो देखिए आप उसी परिस्थिति को कैसे चूज करते हैं. यूनिवर्स भी आपको वैसी ही चीज़ें देगा. अब अगर आप नेगेटिव में चले गए हैं तो आपके चक्रास ब्लॉक होंगे. अगर आप पॉजिटिव में होंगे तो वही चक्रास आपके एनहांस हो जाएंगे. तो इट इज़ हाउ यू यूज़ द पावर. मैं हमेशा बोलती हूँ, अब जैसे इनके केस में अगर मैं इनको थ्रोट चक्र खाली मेडिटेशन भी दे दूँ, इट विल नॉट वर्क फॉर हर. नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मेडिटेशन. वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो परमिशन ही नहीं देगा. क्लाइंट अपनी बॉडी को परमिशन ही नहीं दे रहा कि मैं किसी चीज़ को अंदर आने दूं. तो आपकी बॉडी का जो डोर है वो आपका माइंड है. तो अगर आपके माइंड ने परमिशन नहीं दी किसी चीज़ को अंदर आने के लिए, तो आप चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी, इट विल नॉट वर्क. ओके. So I think maybe if time permits next time or sometime whenever we meet next, maybe we'll also talk about this. I think you had given me also suggestion in a workbook or a worksheet ki how to do power talk, etc. Yeah. So I know it was long back, but now coming back to this because I think it looks like the solution to many problems. जैसे आपने कहा सिर्फ रूट चक्रा बैलेंस कर दूंगी नहीं होगा. There are multiple things. देखिए and how you उसमें look सबसे yourself. बड़ी बात है ना, अगर आप पावर टॉक में बात करेंगे ना, आपकी लिसनिंग इतनी ऑल्टर हो जाएगी. आपको कोई बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, देखिए वो पॉजिटिव बोल रहा है, वो नेगेटिव बोल रहा है, वो मैटर नहीं करेगा. आप उसमें से अपने सिर्फ ऑड्स एंड इवन्स देखोगे. ये इंसान मुझे बोल रहा है, इस चीज़ को मैं कैसे बेटर बोल सकती हूँ, या
अगर वो मतलब मैंने जितना देखा है, पीपल व्हेनेवर दे से समथिंग टू यू, हो सकता है आपको उस मोमेंट में नेगेटिव लगे, उस मोमेंट में, क्योंकि माइंड को आपका वो ट्रिगर हो Right, सकता है, right. लेकिन अगर आप उसको 5 मिनट के बाद सेल्फ एनालाइज करो तो उसने आपकी कोई वीकनेस को इम्प्रूव करने की बात कर दी. नाउ इफ़ यू आर अ पावर टॉक पर्सन, आप उसी चीज़ में उसी को रियल एनहांसमेंट ले लोगे. ले लोगे. अच्छा, उसने मुझे ये बोला, ओके, ये दिस वाज द एक्चुअल मीनिंग, दिस इज वेयर द यूनिवर्स वांटेड मी टू गिव द मैसेज. मैंने वो मैसेज लिया, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तुरंत रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में. So I know the time is very less with you and you have multiple other things today in your calendar. तो इसके ऊपर हमें एक एपिसोड करना पड़ेगा. आई थिंक टीम वुड वांट, पहले भी आया था ये सब्जेक्ट. सो अनदर एग्जाम्पल फॉर पीपल अंडरस्टैंडिंग. अभी आपने बोला ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं पावर टॉक एंड इट हेल्प्स. सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल एंड टेल मी व्हाट इज दिस. जो आपने कई चीज़ें भी हमने टच करी. एक तो होता है सिचुएशंस पे कैसे आदमी रिएक्ट करता है और कैसे वो रजिस्टर होके आगे लाइफ में भी इम्पैक्ट करते हैं. सो एवरीबडी नोज नवाब पटौदी, ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटर, राइट? ही बिकेम द कैप्टन ऑल्सो, एंड एवरीबडी नोज ही लॉस्ट अ आई इन एन एक्सीडेंट एंड वन ऑफ हिज आईज वाज ग्लास की. नाउ अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल क्रिकेटर और दूसरा कैसे खेलूंगा यार, एक आंख तो है ही नहीं, एक आंख के साथ नहीं देख सकते, यू नीड फॉर विजन बोथ ऑफ इट. अब उन्होंने क्या किया, वो कह रहे उन्होंने खेलना प्रैक्टिस शुरू करी. तो जब उनसे किसी ने पूछा कि अब एक आंख से कैसे खेलते हैं, आप तो पहले अनसक्सेसफुल रहे बहुत, फिर आपने उसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया, खेलना शुरू कर दिया आपने, बिकॉज उसका यू वर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. कह रहे मैंने देखा कि मेरे को ना 2-2 बॉल्स दिखती हैं शुरू में. आई सॉ दैट देयर आर 2 बॉल्स कमिंग. तो मैं मारता था बॉल को, नहीं लगती थी. तो फिर कह रहे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी. फिर मैंने थोड़े दिन बाद क्या किया, पहले मैं नीचे जो बॉल 2 बॉल्स दिख रही हैं ऊपर नीचे, मैं नीचे वाली को मारता था और मैं नहीं मार पा रहा था. फिर 3-4 बार आउट हो गया मैं. फिर मैंने ऊपर वाली बॉल को हिट करना शुरू किया और मैं स्कोर बनाना शुरू कर दिया. सो ही फाउंड अ सोल्यूशन रादर देन ऑप्शन 1 घर बैठ जाओ, पैसा तो है ही. नवाब आज भी उनके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज आज की डेट में उसकी रॉयल्टी कितनी आती है, तो मनी वॉज नेवर अ फैक्टर. द फैक्टर वॉज ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. सो हाउ डू यू थिंक दिस पर्सन हैड दैट पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड देन ऑफ कोर्स काम देखो कर्म करना पड़ेगा. ही स्टिल, देखिए, सिर्फ खेल जील का है, आपके अंदर जील कितनी है किसी चीज़ को करने की. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ मनी. देखिए, ये 2 तरीके होते हैं. पैसा आदमी को कंस्ट्रेंट करता है, जील आदमी को एक्सपैंड करती है. जो भी इंसान काम करेगा उसके अंदर अगर जील होगी उसको करने की, पैसा विल ऑटोमेटिकली फ्लो. लेकिन जो आदमी मनी के कंस्ट्रेंट से काम करेगा वो हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म में रहेगा. तो वो हमेशा जीवन में यही मानेगा कि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे सर्वाइव करना है. लेकिन जब इंसान किसी चीज़ को करते समय ये डिफाइन कर रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, वो अपनी पावर ढूंढ रहा है. यही चीज़ सुधा कृष्णमूर्ति जी में भी है. वो अपनी पावर को समझती है. People who are intellectuals, they only think about their powers. They don't think about their weaknesses. परिस्थिति है, देखिए, एक अंक का होना इज अ परिस्थिति. और आपने सही बोला कि बहुत लोग नहीं करेंगे, तो परिस्थिति है, लेकिन चॉइस भी तो है ना. मेरे पास सीखने के लिए मुझे भगवान ने बुद्धि दी है. हार मान सकती है ये बुद्धि या चॉइस कर सकती है बुद्धि. अब आप ये भी कह सकते हैं भाई वो तो नवाब पटौदी थे, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा था, वो सोच सकते थे. नहीं, उनके लिए इजी था बैठ जाना कि क्या करना है. हाँ, दोनों ऑप्शंस थे ना. He had a very Easy easy था और जील थी, दोनों उनके पास ऑप्शंस थे एट द सेम टाइम. सो यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू 2 चॉइसेस. इनकी तरह गिल्ट में रह जाना या ये पूछना अपने आप से व्हाट इज द वे आउट, हाउ कैन आई स्पीक. क्योंकि देखिए, बात तो आपको करनी पड़ेगी. परमात्मा ने सिर्फ एक मनुष्य को वाक शक्ति दी है. जब मनुष्य शुद्ध बात करता है, प्योर बात करता है, धीरे धीरे उसकी वाक सिद्ध हो जाती है. तो वाक सिद्धि करिए, ना कि वाक को सप्रेस कीजिए. ज़्यादातर लोग ज़्यादातर आज की डेट में हम बोलते हैं कोविड की वजह से, नहीं, मोस्ट ऑफ दी 80 to 90% पीपल को आप देखेंगे तो उनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस. इसीलिए आज थायराइड हैज़ बिकम कॉमन. आज अब हम बोलते हैं पोल्यूशन की वजह से गला खराब होता है. देखिए, जिनका नहीं खराब होता वो उनके लिए पोल्यूशन नहीं है क्या? दे आर हैव अ गुड कंट्रोल ओवर देयर वॉइस. तो उनका कमांडिंग वॉइस है, कंट्रोलिंग वॉइस नहीं, कमांडिंग वॉइस है. दे कैन कमांड थिंग्स इन देयर लाइफ. उनका माइंड कमांड कर रहा है, ओके दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट. वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक. अच्छा, ये परिस्थिति है, इसमें मुझे क्या चूज़ करना है. और वो कभी इस चीज़ को गिल्ट में नहीं लेके जाते. हाँ, मैंने ये गलती की, मैं नेक्स्ट टाइम ये रिपीट ना करूँ. दैट्स द डिफरेंस. To learn.
So I know paucity of time. So quickly to wrap up, so what is your key message for this episode and for people who have suppressed their voice? क्योंकि जैसे इन्होंने बोला क्या फ़ायदा, मतलब बोल के कोई फ़ायदा नहीं, nobody is listening to me, nobody is taking my words seriously, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर है, and this is with many a people. Even her job also, Right? देखिए ना. हाँ. So सबके ये काफ़ी common problem. So what are the 2-3 key elements? I know we spoke about power words, we spoke about self-talk, positive self-talk, or not only root chakra is balanced. There could be multitude of things. Yeah. So what are the 3 key messages? Where do people start? क्या करें जो ऐसा feel कर रहे हैं? And of course they're not liking it. Though they have become that way कि बोल ही नहीं रहे, आंखें नीचे हैं, guilt है. So 3 top चीज़ें बताइए कि where do they start to improve? सबसे पहले तो आप जो परिस्थिति की वजह से आप ऐसे बने हैं, राइट डाउन दैट सिचुएशन. Okay. तब आप हो सकता है 14 साल के थे, आज आप कितने साल के. तो आज आप जिस जगह से उसी परिस्थिति को देखेंगे तो आप उस चीज़ को बेटर देख पाएंगे. क्योंकि 10 साल, मान लेते हैं 10 साल में हुआ, मान लेते हैं 14 साल में हुआ, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ वैसी ही थी? नहीं थी. क्या आप लास्ट ईयर जैसे सोचते थे आज भी वैसे सोचते? नहीं. तो इसका मतलब अगर आप 10 साल पीछे की किसी भी चीज़ को एनालाइज करेंगे, यू विल सी अ बेटर थिंग. उसको बिना कड़वाहट के देखिए, बिना सामने वाले को जज किए और ना खुद को जज करे. राइट डाउन दैट होल सिचुएशन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. बिकॉज एक 10 साल के फ्रेम में ना आदमी स्टोरी भी बहुत उसमें ऐड कर लेता है. इट्स नॉट जस्ट वो रियल सिचुएशन. तो राइट द रियल सिचुएशन, फिर उसके बाद लिखिए कि आपने एग्जैक्टली क्या फील किया. क्या आपने वो गिल्ट, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है, उससे भी पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू द गिल्ट एंड शेम यू आर इन. अगर आपका आंसर है नो, तो फिर वो सिचुएशन लिखिए. सिचुएशन में एग्जैक्टली लिखिए कि आपको क्या फील हुआ. उसके बाद पूछिए अपने आप से, आज अगर आपको ये ऑप्शन मिले इसको चेंज करना है तो आप क्या चॉइस डिफरेंटली करेंगे. वहाँ से आप पावर टॉक ऐड कीजिए. पावर टॉक से देन यू चेंज द पाथ ऑफ taking your choices and you will see a different you. Okay. So on Power Talk, if you have any episode that you have done earlier or any guided meditation session, if you can put it in the link box here, or maybe we'll shoot something on this because this we will, because Power Talk nobody has spoken on. हाँ, because I haven't seen any podcast on Power Talk. No, people don't talk about Power Talk. हमेशा positive negative की बात करते हैं, motivation की बात करते हैं. See, Power Talk is like in self inspiration. आपको हमेशा you should be the inspirer of your journey. as if मैं माउंटेन मैन की कई बार वो बात बोलती हूँ, मैं हमेशा इंस्पिरेशनल चीज़ें देखना पसंद करती हूँ दैन मोटिवेशनल. बिकॉज इंस्पायरेशन आपको रोज़ कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है. इट वेक्स यू अप इन योर ओन ज़ील. और आप रोज़ अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर करते हैं. हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव, हाउ मच करेज यू हैव. वेयर एज मोटिवेशन के अभी आपको थोड़ी देर अच्छा लगा, कर लिया, फिर नहीं आपको रिजल्ट एज पर योर मेंटल एक्सपेक्टेशन आया तो आप ड्रॉप कर देंगे. क्योंकि हमेशा हम कुछ भी करते हैं ना तो मेंटल एक्सपेक्टेशन से करते हैं, हम डिस्कवरी से नहीं करते. जबकि जब हम इंस्पिरेशन से करते हैं, इट इज़ सेल्फ डिस्कवरी. वेरी बिग डिफरेंस. हम यहाँ अपने बारे में जानने आए, ये जानने नहीं आए कि परिस्थिति हमेशा मेरी लाइफ में ऐसी क्यों है या ऐसी ही रहने वाली है क्या. हमको अपनी चॉइसेस ढूंढनी है. देखिए, अगर हम केवमैन से आज यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो इसका मतलब हमने डिस्कवर किया अपनी जर्नी को. हम डिस्कवरी पे. अगर हमने अपना वो जो हमने तब चीज़ थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, उसको आज हमने छोड़ दिया बिकॉज थिंग्स आर इजीली अवेलेबल. आज हम सिर्फ लिव कर रहे हैं. और यही क्वेश्चन हमारा कार्मिक स्पेस में होता है, आई हैव टू लिव माई लाइफ. नो, यू हैव टू डिस्कवर योर लाइफ. Okay. So thank you so much, Richa, again, and thank you, viewers. I think we have had a very empowering session, very knowledgeable session. So please go use what we got to know from Richa ji कि आप कहाँ से start कर सकते हैं. Problem है, पता है. So start on the journey, and if you still want any answers, you can always put your questions in the description box and you will get the answers from Richa and her team. Thank you so much.